The only question I think that all of you want an answer today, and the entire country, will Vinesh Fogart get the joint silver medal? The medal that she deserves, the medal that she fought for, the medal that she won. Until you had things changing, until you had that entire episode of her disqualification. So all eyes are now on that big ad hoc division of the Court of Arbitration for Sport, the CAS, that's going to be pronouncing its verdict on Fogart's plea against the disqualification and also seeking a joint silver medal. Now, the decision is likely to be pronounced by 9:30 p.m. tonight, is what sources tell us, and this means that any time from now till 9:30 we could have that update coming in. The hearing in the case earlier has concluded. It lasted about 3 hours. India had roped in top lawyers like Harish Salve and Vidushpat Singhania to represent Fogart at the Court of Arbitration for Sport. Remember, she participated in the proceedings virtually, is what we are given to understand. She presented her case to the tribunal, and after the hearing, the Indian Olympic Association had insisted that it was hopeful of a quote-unquote a positive resolution. Now, the main arguments, remember, of her legal team was that she didn't commit any kind of fraud. They said that this was a negligible weight gain that was a result of the body's natural recovery process. Because do remember, just on the previous day, she had fought about 3 powerful bouts and she obviously wanted to recover that energy. India has also argued that the 100-gram weight gain could be attributed to water retention because of summer heat, increased muscle mass from competing, or necessary food intake for recovery. And calling the expulsion as disproportionate response, her legal team has argued that the consequences of disqualification were too severe, given the minimal excess that we have seen in the weight. The entire country has stood solidly behind her, with sporting greats from India, from abroad, all throwing in their weight behind the Indian wrestler. Sachin Tendulkar, too, remember, just about yesterday, put out a full post where he's batting for Fogart. He says that robbing her of a deserving silver defies logic and complete sporting sense. Also, the US wrestling great Jordan Buggs also demanded silver medal for Fogart. He's also called for changes now in the wrestling rules, proposing that after a semi-final victory, medals of both the finalists should be secured even if the weight is missed on day 2. Times Now has also spoken to the bronze-winning players of the India hockey team, who have also expressed their dismay over Fogart being disqualified. अगर हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करें तो एक जो सबसे चर्चित था पूरे ओलंपिक्स में वो था विनेश का जो परफॉर्मेंस था। बहुत हार्ट ब्रेक हुई। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, ट्वीट किया विनेश को लेकर। आप भी दुखी थे कि एक टॉप परफॉर्मर आपकी जो कंटिजेंट के भाग थी बस 100 ग्राम से चूक हुई है। जरूर सर, जब सर कोई एथलीट अपनी पूरी लाइफ एक गेम को देता है सर, उसके बाद ओलंपिक के इतने ज़्यादा मतलब कि पास में वो थे कि फाइनल खेल सकते थे, एंड देन ऐसा होता है। तो सर कोई भी एथलीट हो, चाहे सर हमारे देश का हो या कोई भी देश का हो, तो सर दिल तो सर एक बात तो सर सैड तो फील बहुत ज़्यादा हम करते ही हैं, और बट सर पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द लाइफ है सर, एंड यू हैव टू सर मतलब जो भी आगे आएगा उसको आपको देखना चाहिए। So remember, the entire country hopes and believes that there could be a favorable verdict and there could be some sense, and possibly this is also the time for a relook at a lot of these rules that have been cited by the agency. We have Kapil Sankla, the Supreme Court lawyer, joining us, along with Alka Tomar, who's a former wrestler and coach. Kapil, before I come to you, I should get Alka into this conversation first up. Alka, देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, उम्मीद हम सबको है अलका, लेकिन ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि देखिए भाई रूल्स है और अगर आप थोड़ा सा भी ओवरवेट हो जाते हैं तो आप कैसे एक मेडल मान सकते हैं, लेकिन वहीं वो भी लोग हैं अलका जो देश में ये पूछ रहे हैं कि अगर विनेश ने वो मेडल जीता है और जीता है सही तरीके से, फेयर एंड स्क्वायर गेम हुई है और तब तक उनका वेट सही था, तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि उनको सिल्वर ना मिले? आपको लगता है ये तर्क वाकई में काम करेगा? जी बिल्कुल। एक्चुअली डिसिप्लिन मैं इसलिए पहले शब्द यूज करना चाहूंगी क्योंकि डिसिप्लिन एक रेसलिंग में या किसी भी गेम में बहुत ज्यादा जरूरी है एक खिलाड़ी के लिए। तो इसीलिए ये रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि खिलाड़ी उनको फॉलो करे और अच्छे से वो अपनी चाहे प्रैक्टिस है चाहे अपना कंपटीशन है उसको कंप्लीट करे, उसमें ना कोई चिटिंग करे और ना ही कुछ इस तरह के जैसे विनेश के साथ ये हुआ कि भाई आपको 50 केजी वेट दूसरे दिन भी दिखाना था, तो वो रूल में ही है
इसीलिए विनेश को फाइनल की बाउट नहीं खेलने दिया गया। लेकिन अगर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, अगर खिलाड़ी पूरा एफर्ट्स डाल रहा है कि हाँ भाई मैंने पूरी कोशिश की है, अच्छे से मैंने कंप्लीट किया है, अपना वजन भी मैंने घटाया है और किस तरह से उसने फाइट लड़ी है, ये बहुत जरूरी है देखना कि किस तरह से विनेश ने स्टार्टिंग से लेके सेमीफाइनल तक उस लड़की ने फाइट की है। वो चीज ओलंपिक एसोसिएशन को देखनी चाहिए, वो चीज हर एक मेंबर को देखनी चाहिए जो मीटिंग में आज फैसला आने वाला है कि भाई इस लड़की ने किस तरीके से कंप्लीट किया है, किस तरीके से उसने फाइट निकाली है। और उसने वेट के टाइम पे भी उसने गिव अप नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मैं घटाना ही नहीं चाहती हूँ, उसने पूरी कोशिश की है लास्ट टाइम तक। अलका, आप क्योंकि खुद एक रेसलर रह चुकी हैं, तो मुझे एक चीज छोटी सी बात बताइए कि अगर कोई भी रेसलर है वो अपनी गेम के लिए इंतजार करता है, एक दिन में 3 बाउट्स होते हैं, जबरदस्त पावरफुल गेम्स हैं, जिसने अब उसमें विनेश ने अनबीटन वर्ल्ड नंबर 1 अनबीटन उनको डिफीट किया हो और उसके बाद अगले दिन उनका फाइनल्स के लिए मैच है, गोल्ड के लिए मैच है, तो ऐसे में खिलाड़ी खुद भी नहीं चाहेगा कि किसी तरह की गलती हो, कुछ भी ऊपर नीचे हो। सपोर्ट स्टाफ को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं अलका कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है। कैसे हुआ कि किसी ने वेट मॉनिटर नहीं किया या पहले अलार्म रेज नहीं किया? आपको लगता है कि उस समय में कुछ हो सकता था? देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो चूक रही है, क्योंकि विनेश का ये पहला ओलंपिक मेडल है। उससे पहले ओलंपिकों में विनेश का कोई मेडल नहीं था। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस विनेश का भी नया ही था कि एक बार तो हमने वजन अपना दिखा दिया, सेकंड टाइम आपने दिखाने के बाद, रिकवरी करने के बाद दूसरे दिन आपने वजन दिखाया, ये पहला एक्सपीरियंस था विनेश के लिए। नहीं अलका, जहां तक मेरी जानकारी है विनेश पहले ओलंपिक खेल भी चुकी है और वो मेडल भी जीत चुकी है। और उस समय भी अगर आप किसी खिलाड़ी को देखें, अब कपिल, having set everything aside, when it comes to rules, any rule is not set in stone. There is always a time to revisit rules, and especially when you look at a case like this. Now, what the petition that was moved by Vinesh personally has said is that this is a part of a natural recovery process. After 3 bouts, it was but obvious that the body would be looking for some bit of energy. So possibly they are saying that could have led to this weight gain. Is there a scope, Kapil, of a rethink, of a relook here? You see, there are 2 aspects of the argument and the principles here. One is called the proportionality principle, and the second is the mala fide principle. Mala fide principle basically means that if you're seeking an exception to a rule, you have to show that your conduct has been bona fide, without malice, without getting any undue benefit or advantage. Okay. In this case, the weight gain is insignificant. It is only 100 grams. And that is also uncontrolled in the sense that there is also body rhythm to it. As you've stated, it could be due to water retention, it could be due to the physical exertion, it could be for many reasons. And the second is the proportionality principle. The proportionality principle is that given the insignificant weight gain, is the punishment that is being given is proportionate to the break in the rules, so to say. And that is why most rules are also open to interpretations of judiciary, arbitration, tribunals, etc. So in this particular case as well, given the disproportionality of the punishment and the insignificant weight gain, and that weight gain could not have benefited her in any manner, I am very hopeful that our assertion and our grounds would be taken positively, and if nothing else, she would be entitled to have a joint silver medal as has been prayed, which is a very, very fair, not a demand, but a request that has been raised. And Kapil, before I get back, Alka, into this conversation, a lot of lawyers back home here who've also worked with different sporting federations have kind of underscored that there is always that kind of a lacune that possibly can be used, to cite why Vinesh possibly should be getting a shared silver. Now, to say that an athlete who's won her match fair and square should just be disqualified, placed at the last, I mean, is that law good in spirit? Because spirit is also in a sense of any law, Kapil.
Spirit is the essence of any law. You're Yes. absolutely right. Because one has to see why a certain rule, a certain law, or certain guidelines have been put into place. And that is why I stated that as far as the first argument is proportionality, and the second is the conduct, the past precedent, the bona fide of an athlete or any person making that request. Such requests have been made before as well in various other instances, in various other sports, and especially in contact sports. So when you're talking about judo, boxing, wrestling, etc., you know, the body rhythm also plays an immense role, and you're actually talking about half a kg up and half a kg down. But the advantage would only be if you're playing in a different weight bracket. If that is not the case, and you're in the same weight bracket, then that benefit should be given to you, because otherwise you are kind of making a law that is nonsensical, that is beyond, you know, the realms of what is called the Wentworth principle, which means that the principles of proportionality and reasonability. If it is an unreasonable law, it is not a good law, and it is inviting a change, as has to be done in this current case and instance. ओके अब अलका, जब हम किसी भी खिलाड़ी को देखते हैं, सवाल ये भी उठ रहा है और यहाँ पर बहुत सारी राजनीति हुई है कि स्पोर्ट्स और राजनीति को जब मिक्स किया जाता है तब देखिए नुकसान तो खिलाड़ी का होगा, नुकसान कंट्री का होगा। एक जो मेडल हमें ऑब्वियसली अश्योर्ड था, उस रात सबको उम्मीद थी कि विनेश जब आएंगी और विनेश ये गोल्ड जीतेंगी, वो गोल्ड हमारा था, ये सबको पता था। लेकिन ओवरनाइट ऐसा अलका क्या हो सकता है? अब आप क्योंकि खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं, आप खुद एक रेसलर हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या हर चीज, आप कितना पानी पीती हैं, क्या खा सकती हैं, इतने पावरफुल बाउट्स के बाद एक खिलाड़ी तो वो कैलकुलेशन करेगा, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो क्या करता है? देखिए, पहले मैं पहली वाली बात का जवाब दे दूं आपकी, क्योंकि आपने कहा था कि विनेश पहले भी ओलंपिक खेल चुकी है। तो पहले ओलंपिक विनेश खेली थी, पहली फाइट है वो हार गई थी। वो बात ठीक है, लेकिन ओलंपिक में गई है, वो तीन बार ओलंपिक में गई है। फर्स्ट डे उसने इस बार भी वजन दिखाया, लेकिन सेकंड डे रिकवरी, पूरा दिन आप 3 फाइटें खेले हैं, पूरा दिन आपका उधर गुजरा, फिर उसके बाद आपने रिकवरी की, फिर सेकंड डे वो वाला एक एक्सपीरियंस अलग होता है, वो कभी विनेश के साथ नहीं हुआ है। वो सेकंड डे आपको वजन देना है। तो आपको लगता है इसमें विनेश की गलती हो सकती है अलका? विनेश की गलती नहीं, ये पूरा एक टीम मैनेजमेंट जो उसके साथ गया था, सबकी ही थोड़ी गलती है। आपको पहले ही ये प्लानिंग करनी थी कि अगर आप विनेश फाइनल में जाती हैं तो आप कैसे वजन घटाओगे अपना, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या पीना चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी एक खिलाड़ी की भी बनती है। अगर आप फाइनल में पहुंच गए हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है और आपके सपोर्टिंग स्टाफ की भी जिम्मेवारी है। अलका, देखिए ये वाली बात बहुत कही जा रही है, एंड यू नो कपिल, यू वुड आल्सो एग्री विद दिस। इट्स वेरी इजी राइट नाउ टू यू नो से दैट पॉसिबली लेट्स ब्लेम हर, लेट्स ब्लेम द सपोर्ट स्टाफ, बट आई कांट पुट माय, यू नो, आई कांट रैप माय हेड अराउंड द फैक्ट, अलका एंड कपिल, कि कोई खिलाड़ी खुद ये चाहेगा कि वो अपनी गेम लूज करे। हम सबको पता है कि 53 से लेकर 50 किलो में वो आई, और क्यों आई ये भी सब जानते हैं। इसके पीछे भी कहा जाता है कि बहुत पॉलिटिक्स था, बहुत स्ट्रगल था। अब जैसे कैसे करके वो 50 किलोग्राम में आती है, द चैलेंज इज अलका कि वो अपना वेट मेंटेन करें। तो ऐसे में आपको लगता है कि फेयर है कि हम विनेश को ब्लेम कर दे, सपोर्ट स्टाफ को ब्लेम कर दे? IOA की क्या जिम्मेदारी है? और आपके पास जब इतनी जबरदस्त आपने गेम्स खेली हैं, उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी अगले दिन एक बड़े मैच के लिए देखता है, तो सपोर्ट स्टाफ, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो टीम्स और एथलीट्स के साथ जाते हैं? अलका, सबकी जिम्मेवारी है, सबको एक जिम्मेवारी मिलती है और सबको निभानी भी चाहिए वो जिम्मेवारी, क्योंकि एक ये इससे बड़ा पोडियम कोई नहीं होता है, ओलंपिक से बड़े गेम्स कोई नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है। और वो भी इस स्टेज पर आके कि आपका खिलाड़ी फाइनल में है, तो आपको पूरा खिलाड़ी से ज्यादा टेंशन उसके कोच को हो जाती है, ठीक है। कैसे वो वजन घटाएगा, कैसे उसको उसके साथ खेलना है, पूरी प्लानिंग एक कोच को करनी पड़ती है खिलाड़ी से ज्यादा। फिर वो उसको खिलाड़ी को समझाता है कि भाई आपको इस तरह से वजन कम करना है, इस तरह से आपको फाइट खेलनी है। तो पूरी जिम्मेदारी एक कोच की और उसके सपोर्टिंग स्टाफ की एक प्लेयर से ज्यादा रहती है। तो उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई अलका? कहीं तो कोई चूक हुई है ना? सबने निभाई, सपोर्टिंग स्टाफ ने भी निभाई, विनेश ने भी निभाई, लेकिन चूक भी हुई।
अब चूक किसकी हुई है, यही सबसे बड़ा सवाल है. आई थिंक कपिल दैट पॉसिबली विल बी डिस्कस्ड इन टाइम्स टू कम, बट राइट नाउ व्हाट द कंट्री इज सेइंग एंड व्हाट द वर्ल्ड इज आल्सो लुकिंग एट, it's not just from back home here in India, Kapil. You must have seen the kind of outpouring, the kind of support that has come in from across the world. Across the world, people are saying it's time you revisit the rule. Give her a due because she won that match. Not only she won that match, but in the first weigh-in, she qualified the 50 kg bracket. Now, in the second weigh-in, there has been a 100-gram discrepancy. That benefit should have been given. And as I said, there is a disproportionate punishment that she is put at the last in the line when she has fought the best battle, as to say, the best match. It's very easy to start a blame game, but let's not do that right now. Let us all stand behind an athlete who has given her life and soul to a sport and to India. And I think as Indians, it is imperative right now that we just tell her that irrespective of whatever blame game that might come later and whatever politics people are playing, but we should stand by her, we should support her, we should have her in our prayers, and we should just wait for the CS to come up with a positive order which has been requested and argued before the tribunal, the arbitral tribunal. एब्सोल्युटली. और अलका, एक सवाल आपसे भी है. देखिए, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स हुआ है, अब कई लोग कहते हैं इसमें कि साबोटाज है, कोई कंस्पिरेसी है, बहुत सारी बातें कही जा रही है. और मुझे भी यकीन है कि हम सब की तरह विनेश ने तो क्योंकि खुद ये सब झेला है, उनकी जो तस्वीरें हमने देखी हैं, द मोमेंट शी गॉट टू नो दैट शी इज बीन डिस्क्वालिफाइड, अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो विनेश के लिए फील नहीं करेगा, क्योंकि जितनी मेहनत और जितनी हिम्मत लगती है वहां तक पहुंचने में, वो गेम खेलने में, एक अपोनेंट को डिफीट करने में, अलका, उसके लिए कुछ जवाब नहीं है. हम आज विनेश को क्या जवाब देंगे? देखिए, वो तस्वीरें देख के हमें भी रोना आया था. हमारी सबकी आंखें भर आई थी कि कैसी हालत में विनेश है, क्या क्या उसने झेला है पूरी रात, किस तरह की उसकी कंडीशन रही है, मेंटली भी और फिजिकली भी. ठीक है, लेकिन ये जो लोग बाग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं कि इसमें कुछ किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने ये वो कर दिया, ये गलत है. ये चीज मेरे को बहुत गंदी लगी कि हर जगह हम एक राजनीतिक मुद्दा ले आते हैं, चाहे खेल हो, चाहे हमारे खिलाड़ी की कैसी कंडीशन है, या हमारे देश पे क्या गुजर रहा है, तो वो चीज हमको नहीं लानी चाहिए. वो चीज मैं स्टार्टिंग से फेस कर रही हूँ. जिस दिन से हम विनेश का ये मुद्दा उठा है, उस दिन से ही राजनीति उसमें कांग्रेस है या जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, हर किसी ने मतलब मुद्दा उठा दिया कि इसके साथ कुछ गलत करा है किसी ने. तो आपको नहीं लगता अलका, आपको नहीं लगता, आपको बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं पर कुछ तो दाल में काला है? कई लोग तो कहते हैं पूरी दाल काली है. नहीं, मुझे नहीं लगता. इस स्टेज पे आके नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो टीम थी वो विनेश की चुनी हुई टीम थी, और विनेश खुद भी इतनी सिंसियर है, खुद भी इतनी समझदार है, और 25 साल उसको कुश्ती करते हुए हो गए हैं. ये 2001 से लेकर 2024 तक का सफर था उसका, और उसने पूरी जी जान लगा दी थी इस मेडल के लिए. तो वो बहुत ही सीरियस थी. बस कई बार बॉडी ऐसी डिहाइड्रेट उसकी इतनी ज्यादा हो गई, वो हिम्मत नहीं बची उसके अंदर. मैं आपको बता दूं, मैं अभी 2023 में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें एज ए कोच गई थी मैं. अपनी 6 लड़कियां थी मेरे साथ, अकेली कोच थी मैं उनके साथ. दोनों टाइम की उनकी प्रैक्टिस कराना, उनका वेट मैनेजमेंट करना, उनको कुश्ती लड़वाना, सारा कुछ जिम्मा मेरे पास था. सुबह को एक लड़की का वेट होता है 50 kg में थी पूजा, और मैंने कहा बेटा चल रहे हैं. कह रहे मैडम मैं आपसे पहले निकल जाती हूँ, आप और लड़कियों को ले जाओ, मैं इतने रनिंग वगैरह करती हूँ, अपना वेट कम कर रही हूँ. मैंने कहा ठीक है. वो उसने रनिंग वगैरह की ज्यादा, और उसके बाद उसको स्वेट नहीं आ रहा, उसको पसीना नहीं आ रहा लड़की को. वो बैठ गई कोने में जा. तो हम पहले चले आते हैं, 1-2 घंटा पहले हमको जाना होता है. तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती. मैंने कहा क्यों? कह रही मैं तो थक गई हूँ बिल्कुल, मेरे को पसीना ही नहीं आ रहा, तो मैं क्यों दौड़ूं? जो मेरे को पसीना नहीं आ रहा तो मैं मैडम दौड़ के क्या करूँ? तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू 5-5 मिनट के या 2-2 मिनट के सेट कर स्पीड में. तो उसके बाद हमने भी दौड़ा, फिर पसीना ही नहीं आया उसको. फिर मेरे दिमाग में आ कि हमारे गुरुजी हमारे टाइम पे क्या करते थे, अगर ऐसे पसीना नहीं आ रहा, रुक गया है, तो एक टॉवल लो और उसके ऊपर अपना सर नीचे कर दो और पैर ऊपर कर दो. तो इस तरह का हमारे साथ भी होता था, हम भी वजन घटाते थे. तो मैंने उसको ऐसे किया, उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ, उसकी बॉडी को जो फिजियो थे मैंने उससे मसाज कराई, उसके बाद उस लड़की को पसीना आना शुरू हो गया.
अलका, जैसी है, बिल्कुल जैसे आप चीजें समझती है, आई एम श्योर द टीम दैट इज द सपोर्ट स्टाफ दैट इज ट्रैवलिंग विद विनेश इज वेल अवेयर, एंड Kapil, we look forward to talking to you and to Alka again through this evening, as we will have that big verdict at least by 9:30 tonight. I'm just remembering this quote and this reaction I'd heard from the coach also, Alka, of Amit Sehrawat, who said कि अमित का 4.6 किलोग्राम वेट ज्यादा था उसके मैच से पहले। हमने विनेश का एपिसोड देखा, उससे हमने सीख ली और जबरदस्त उसने एक्सरसाइज की, पसीना बहाया, एंड ही इज वन अ मेडल फॉर द कंट्री। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू एन एथलीट, लेट्स गिव इट ऑल दैट इज पॉसिबल, बिकॉज दे डू एवरीथिंग टू एंश्योर दैट द कंट्री विंस द गेम। Our prayers are with Vinesh. The entire country is with Vinesh. Thank you to both of you joining us.